Hello, good morning friends and welcome all of you once again. Now we are going to start second part of the line and angles, and here once again a basic concept. Here we discuss a transversal and angles formed by the transversal and angles formed by a transversal with the parallel lines. So this is our sixth continued video for the lesson 6 lines and angles. Okay, so please open your notebook and textbook and see the concept of transversal. I hope you can listen carefully and read carefully and try to understand. So let's start. Now look here, transversal. What is a transversal? A straight line which intersects two or more straight lines at a distinct point. A straight line which is intersect two or more straight lines at distinct point is called the transversal. Look here in the figure. PQ is a transversal. PQ is a transversal which intersect two straight lines L and M in two distinct points. So straight line which intersect two or more straight lines at a distinct point is called the transversal. Now the angles formed by a transversal. First of all, pair of the corresponding angle. Angle 1 and angle 5 is corresponding to each other. Angle 4 and angle 8. Angle 2 and angle 6. Angle 3 and angle 5. They are the pair of corresponding angles. तो सबसे पहले हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर्स ली। यहाँ पर हमें चार पेयर मिलती हैं, एंगल 1 and 5, एंगल 4 and 8, एंगल 2 and 6, एंगल 3 and 7। ओके, इसका जो शेप है, अगर जो ठीक से ध्यान दिया होगा तो अल्फ़ाबेटिकल 6th लेटर F या फिर इंग्लिश न्यूमेरिकल हम लिखते हैं 7। इसकी उल्टी और सीधी इमेज इसमें देखने को मिलती है। नाउ सेकंड, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स। हियर द टू पेयर ऑफ द अल्टरनेटिव एंगल, एंगल 3 and 5 and angle 4 and 6. एंगल 3 and 5 या एंगल 4 and 6 यहाँ पर Z शेप बनाते हैं, उल्टा और सीधा। तो ये पहचान है पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स को याद रखने के लिए। इसे हम कहेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, और इसकी दो पेयर मिली 3 and 5 एंगल और दूसरी पेयर 4 and 6 नंबर के एंगल के साथ। ओके, तीसरी बात, पेयर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की पेयर यहाँ पर है, या फिर इसे हम कहेंगे पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड ऑन द सेम साइड। तो फर्स्ट पेयर हमें मिलती है एंगल 4 and 5 और दूसरी मिलती है 3 और 6 से। 3 और 6 से। ओके, नाउ अब चलते हैं एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल विद द पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहली बात आती है अल्टरनेटिव एंगल्स। हियर द अल्टरनेटिव एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहली बात यह है कि अल्टरनेट एंगल्स की हर एक पेयर, each pair of the interior angles are equal। यहाँ पर एक फिगर हमने ड्रॉ की है, L parallel to M and PQ is the transversal। That means angle 3 equal to angle 5 and angle 4 equal to angle 6 बनेगा। ये है alternative angles के लिए। दूसरा, corresponding angles of each pair are also equal। Once again see the figure and here the 4 pair of the corresponding angles। Angle 1 equal to angle 5, angle 4 equal to angle 8, angle 2 equal to angle 6 and angle 3 equal to angle 7। तो ये चार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर के दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल मिलेंगे। तीसरी बात, each pair of the interior opposite angles are supplementary।
मतलब कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, ये भी हमें यहाँ पर इसका सम ऑफ द एंगल्स मिलेगा 180. दैट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 ऑल्सो. Converse of above three result 1, 2 and 3 is stated as if the transversal intersect the two lines in such a manner that angle of a pair of alternative interior angles are equal. Second, angle of the pair of the corresponding angles are equal. Angles of the pair of interior angles are supplementary, then the two lines are parallel. यहाँ पर एक और बात आपको बतानी थी और ये थी पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में. तो यहाँ पर ये पेयर बनेगी एंगल 2 एंड एंगल 8 और दूसरी पेयर मिलेगी एंगल 1 एंड 7. एंगल 1 एंड 7. तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 को लेकर, जिसमें हमने आपके साथ बात की ट्रांसवर्सल के बारे में. स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल. दूसरी बात हमने की एंगल फॉर्म्स बाय द ट्रांसवर्सल, जिसमें 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स आपको बताएं. पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पर 4 पेयर मिलते हैं, एंगल 1 एंड 5, एंगल 4 एंड 8, एंगल 2 एंड 6, एंगल 3 एंड 7. पेयर ऑफ द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की 2 पेयर मिलती हैं, एंगल 3 एंड 5, एंगल 4 एंड 6. इसी तरह पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स की भी 2 पेयर्स मिलते हैं, एंगल 2 एंड 8, एंगल 1 एंड 7. एंड पेयर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, या फिर इसे कहेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, इसके भी 2 पेयर मिलते हैं, एंगल 4 एंड 5, एंगल 3 एंड 6. जिसके बेस पर एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल विद द पैरेलल लाइंस, 3 रिजल्ट्स हमें फाइंड आउट करने को मिलते हैं. फर्स्ट रिजल्ट है अल्टरनेटिव एंगल्स ऑफ each pair of the interior angles are equal. That means angle 3 equal to angle 5 and angle 4 equal to angle 6. ठीक है, इसी तरह से corresponding angles of the each pair are also equal. That means angle 1 equal to angle 5, angle 4 equal to angle 8, angle 2 equal to angle 6 and angle 3 equal to angle 7. Third one, each pair of the interior opposite angles are also supplementary. देखिए यहाँ पर इक्वल की बात नहीं की है, लेकिन सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 की बात की है. Therefore, angle number 4 plus angle number 5 is equal to 180 and angle number 3 and angle number 6 is equal to 180 also. और लास्ट में अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स के लिए भी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 मिलेंगे. तो ये था हमारा बेसिक वीडियो. आपको ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करने हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 को. तो इस उम्मीद के साथ वी होप सो वेरी वेल कि आपने अच्छे तरह से ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे और हर एक टाइप के पेयर ऑफ एंगल्स को पहचान लिए हुए होंगे. इस बात को ध्यान में रखते हुए आपका फिर से एक बार धन्यवाद करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.